Okay, so let's solve more questions from previous year CET exam. Question number 18th. The electric field intensity at a point near and outside the surface of a charged conductor of any shape is even. The electric field intensity due to a uniformly charged infinite thin plane sheet is E2. The relation between E1 and E2 is. तो if you remember, जब हमने गॉस लॉ सीखा था और जब हमने गॉस लॉ को अप्लाई किया था, हमारे पास एक रैंडम शेप कंडक्टर है. वी हैव अ रैंडम शेप कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड is given by E1 equal to sigma by epsilon 0. ये आपके theory part में cover नहीं हुआ होगा, but I'm telling you, if you have a random shape conductor of any shape, उसके just outside electric field is sigma by epsilon 0. Then if you have a infinite plane sheet, इसका हमने देखा था, we have solved for this during our theory classes. हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं एंड बाय अप्लाइंग गॉस लॉ, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है. ओके, फॉर दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड at a point near to this plane sheet E2 is sigma by 2 epsilon 0. ये हमने डिराइव किया है. ये हाफ 2 नीचे क्यों आया? क्योंकि इन्फिनाइट प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जाएगा ना. इलेक्ट्रिक लाइंस गोस बोथ साइड अवे फ्रॉम द शीट. तो हाफ फ्लक्स एक साइड, हाफ फ्लक्स अदर साइड, इसलिए हाफ आता है. Therefore you can say that E2 is 1 by 2 sigma by epsilon 0, but sigma by epsilon 0 is E1, तो E1 by 2 आ गया ये. Okay, therefore you will have E1 is equal to 2 times of E2. This is what you are going to get. ऐसा मिलने वाला है आपको. Okay, तो E1 is 2 times of E2. ये आपको ऑप्शन नंबर C में दिखता है. This is there in the option number C. Okay, तो ऐसा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th. ओके, टू charges of equal magnitude q are placed in air at a distance 2a, and third charge minus 2q is placed at midpoint. The potential energy of the system is. आपके पास दो इक्वल चार्जेस है which are placed distance 2a apart. तो एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है. ओके, देयर इज अनदर चार्ज which is right at the center over here. ओके, मिड पॉइंट पे है एक चार्ज. टोटल डिस्टेंस चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2 में, ये टोटल डिस्टेंस है a. तो टोटल डिस्टेंस हियर इज 2a, not a but 2a. So this total distance happens to be 2a. तो ये डिस्टेंस a हो गया, ये डिस्टेंस a हो गया. और you have a charge q and a charge q. तो here you have -2q ऐसा बोला है. इसको मैं चार्ज नंबर 3 बोल रहा हूँ. तो आपको बोला है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इफ यू रिमेंबर, potential energy of the system is 1/4 pi epsilon 0 summation over all pairs qi qj upon rij. मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी में आप सारे पेयर्स का कॉम्बिनेशन लेते हो. तो 1/4 pi epsilon 0. ओके, qi qj upon rij, मतलब आप लिख सकते हो इसको q1 q2 upon r12 plus q1 q3 upon r13 plus q2 q3 upon r23. सिर्फ
अगर 3 चार्जेस है तो तीनों का कॉम्बिनेशन, 4 होंगे तो 4 का कॉम्बिनेशन, 4 होंगे तो मैंने बताया था 4 होंगे तो 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, टोटल 6 टर्म्स आएंगे। 3 होंगे तो आपके पास 3 टर्म्स आएंगे, राइट। तो दिस इज व्हाट यू हैव। सो 1 बाय 4 पाई epsilon 0 q1 q2, q1 is q, q2 is also q, तो q into q is q square upon distance, 2a distance है दोनों में, plus q1 q3, q1 is q, q3 is minus 2q, तो ये आ जाएगा minus 2q square upon distance is a, plus q2 q3, q2 is 2, q3 is minus 2q, तो माइनस 2q स्क्वायर बाई अगेन a, तो ये आ गया आपके पास 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाई 2a माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2q स्क्वायर बाई 2a बाई a, नॉट 2a। तो ये आपके पास आ गया 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाई 2a माइनस 4q स्क्वायर बाई a। इसको सिंप्लीफाई कर लो, so this will be 1 by 4 pi epsilon 0. I'll take out q square by a common, half minus 4, तो ये आ गया 1 minus 8 by 2 minus 7 by 2, okay, तो 1/4 pi epsilon 0 q square by a minus 7 by 2, मतलब ये आ गया आपके पास minus 7 by 8 pi epsilon 0 q square by a. This is what you have. Option number D. This is what you're going to get. Okay, आपको ये मिलने वाला है। Next question, question number 21. 3 particles each having a charge of 10 microcoulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 10 centimeter. The electrostatic potential energy of the system is, आपके पास 3 पार्टिकल है, तीनों पे चार्ज जो है दैट इज 10 microcoulomb and they're placed at the corners of an equilateral triangle. So you have an equilateral triangle over here, और इन तीनों के 3 कॉर्नर्स पे you have equal charge. Okay, so Q, अभी इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल देता हूं, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो आपको Q1, Q2, Q3 ये सब इक्वल दिया है Q, और इसका जो साइड है 10 सेंटीमीटर में उसको A बोल देता हूं। ओके, और ये 10 माइक्रोकूलम है, तो दिस इज 10 माइक्रोकूलम। बाय द वे, आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा है, वापस से वही चीज, तो आई विल नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर, मैं सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहां से कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो अब ये चीज और भी इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि आपको पता है अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको दी हुई है 9 × 10⁻⁹। आपको पता है कि यहाँ तीनों कॉर्नर्स पे सेम चार्ज है, तो Q1 × Q2 इज Q स्क्वायर अपॉन R12, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 कॉर्नर इज A, प्लस Q1 Q3 इज अगेन Q स्क्वायर, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये भी A, तो ये भी सेम आएगा। तो हियर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो ये आपको मिल जाएगा 9 × 10⁻⁹, 3 टाइम्स ऑफ Q स्क्वायर बाई A, तो 9 × 10⁻⁹ into 3 times of Q square, 10 microcoulomb, 10 microcoulomb मतलब 10 × 10⁻⁻6 कूलम, मतलब 10⁻⁻5 कूलम आ जाएगा आपके पास। ये 10⁻⁻5 का स्क्वायर, 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻⁻10,
by A is 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर मतलब 10 into 10 power minus 2 मीटर, मतलब 10 power minus 1 मीटर, तो ये 10 power minus 1 आएगा। तो ये आपके पास आ गया 9 into 10 power 9 into 3 into 10 power minus 9, तो ये आपके पास आ गया 27 जूल। तो ऐसा आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इजी है। एज यू सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपको सिर्फ बेसिक्स पता है, बेसिक फॉर्मूलाज पता है, तो खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें, जस्ट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A and separation D kept at potential difference V is, this is something which you have not covered in your theory classes, मतलब you have already covered, सिर्फ आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं और उसका फॉर्मूला आपने कवर नहीं किया है, तो इजी है, मैं बता देता हूं। सो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको आप बोलते हो एनर्जी डेंसिटी। और ये जो एनर्जी डेंसिटी है, इसका फॉर्मूला आता है हाफ इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, इट्स अ बेसिक फॉर्मूला एंड दिस इज वेरी इजीली डिराइवेबल। आप इसको इजीली डिराइव भी कर सकते हो। आपको ऑलरेडी पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर, और हाफ आपको पता है, इसको ही आप इन टर्म्स ऑफ क्यू भी लिख सकते हो, आपको पता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो C क्यू स्क्वायर बाई वी की जगह पे मैं डालूंगा क्यू बाई सी, तो आप इसको हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी भी लिख सकते हो। सो देयर आर 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर एनर्जी स्टोर्ड। तो अब आपको एनर्जी स्टोर्ड का पता है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जो भी एनर्जी का फॉर्मूला होगा उसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, कि 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। सिमिलरली पर यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज हाफ इप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला सिर्फ याद रखना, दैट्स इट। तो आई विल टेक दिस हाउ टू डिराइव दिस, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास में डिराइव ही करके दे दूंगा, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस इज एनर्जी डेंसिटी। आपको पता है, आई टोल्ड यू वंस, नॉट वंस बट मेनी टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब जो हमारे पास कैपेसिटर के 2 प्लेट्स है, ओके, इन दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस D है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V। सो यू हैव potential difference between the plates as V and the distance between the plates as D. This is the distance between the plates. This is the potential difference between the plates. So electric field is potential difference per unit length, मतलब potential difference upon distance. Okay, ये equation number 1, ये equation number 2. So therefore from 1 and 2, energy density, मतलब how much energy is stored per unit volume, is 1/2 epsilon 0 E is V by D का square, so that is equal to 1/2 epsilon 0 V square by D square. This is option number A. So simple question, extremely simple question. Good. Next question. The distance between the plates of a parallel plate capacitor is doubled if the distance between the plates of a parallel plate capacitor of capacity 10 microfarad is doubled. Okay, then new capacitance will be,
मतलब आपको आप ऑफ कोर्स यू नो फॉर अ एयर कैपेसिटर C is A epsilon 0 by D, और यही आपको बोला है कि 10 माइक्रोफैरड है। अब आपको बोला है कि अगर प्लेट का डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं, इफ आई डबल द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट, तो डेफिनेटली कैपेसिटी विल बिकम हाफ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ओरल है क्वेश्चन। यू सी कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस डबल मतलब कैपेसिटी हाफ हो जाएगा। लेकिन फिर भी ठीक है, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। इट इज ऑप्शन नंबर ए, एज यू ऑलरेडी नो। तो न्यू कैपेसिटी सी डैश इज ए इप्सिलॉन 0 by 2d, क्योंकि डिस्टेंस हमने डबल कर दिया, मतलब हाफ ऑफ ए इप्सिलॉन 0 by d, that is half of 10 microfarad, मतलब that is equal to 5 microfarad। तो ऑप्शन नंबर ए आ गया। You have 5 microfarad capacity। अगला क्वेश्चन 24th, in a parallel plate capacitor the capacity increases, मतलब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए a epsilon 0 by d, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय k। तो कैपेसिटी इंक्रीज कब होगा? एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीजेस, नो, क्योंकि यू सी कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी बढ़ेगा, एरिया ऑफ द प्लेट कम होगा तो कैपेसिटी भी कम होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, नहीं, क्योंकि कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। अगर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बढ़ेगा तो कैपेसिटी कम होगा। एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, यस, एज यू इंक्रीज द एरिया ऑफ द प्लेट द कैपेसिटी इंक्रीजेस। तो CET level questions are so simple, extremely simple। अगला क्वेश्चन, the electric field intensity outside a charged sphere of radius r at a distance small r is, ये तो थियरी में हमने किया ही है, मैं फिर भी बता देता हूं। हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, we have a charged sphere of radius capital R, okay, there's another point at a distance of small r, so this is radius, this is distance small r। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अगर आपको याद होगा हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, मतलब ये एक्चुअली थियरी में हमने कवर कर ही लिया है, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to 1/4 pi epsilon 0 q by r square, ऐसे आता है इक्वेशन नंबर 1। okay, this is already derived in theory, so we'll not go into derivation again, but as you know, surface charge density sigma is charge per unit area, so that is q upon 4 pi r square। this is equation number 2। या तो फिर मैं लिख सकता हूं सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब चार्ज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, मतलब सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 in 1, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 in इक्वेशन नंबर 1, you will have E is equal to 1/4 pi epsilon 0 sigma 4 pi r square upon small r square। 4 pi गया तो आपको मिल जाएगा सिग्मा r square अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r square। आ गया आपका आंसर नंबर ए। ये तो वैसे नहीं भी किया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थ्योरी में हमने ये ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड दिस ड्यूरिंग थ्योरी क्लासेस, सो दैट इज सिंपल थिंग, ओके, सो वी डोंट हैव टू डू इट अगेन। अगला क्वेश्चन
26th, the energy required to charge a parallel plate condenser of plate separation D and plate area of cross section A such that the uniform electric field between the plate E is. So the energy required to charge a parallel plate capacitor या कंडेंसर एक ही बात है जिसका प्लेट सेपरेशन डी है प्लेट एरिया ए है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ई इज इफ यू रिमेंबर ये भी हमने करके रखा हुआ है हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज half CV square. This is what, sorry, not electric field, energy stored is half CV square. This is what you already know. तो आपको already पता है, right? But you also know that capacitance is A epsilon 0 by D. आपको पता है, okay? And also what you know is, देखो हमको आंसर क्या चाहिए, हमको आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ E, A and D. We want the answer to be in terms of E, A and D. Okay, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by D, तो V इक्वल टू E इंटू D, तो V इक्वल टू ED और C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 by D सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. ओके, सो equation number 2, equation number 3. Okay, substituting 2 and 3 in equation number 1, you will have energy stored U as half C, but C is A epsilon 0 by D and V is ED, तो E square D square एक और एक गया, तो 1/2 A epsilon 0 E square D. ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए. 1/2 A epsilon 0 E square into D. ऑप्शन नंबर डी. ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. एज यू सी क्वेश्चंस ऑफ CET आर वेरी वेरी सिंपल, लेकिन ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमेंबर 2008 बहुत इजी. आप पीछे जाओगे 2010 इजी, 10 इजी 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 इजी, बट एज यू गो आफ्टर 2018, क्योंकि 2018 से लेवल बढ़ा दिया गया था. इफ यू रिमेंबर CET को ऐसा बोला था कि जेई मेन के लेवल तक लाएंगे, तो 2018 के बाद के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं. क्वेश्चन नंबर 27. A parallel plate condenser with oil dielectric constant 2 between the plates has a capacitance C. If oil is removed, then capacitance of the capacitor becomes. This is easy thing. This is nothing. आपको याद है capacitance is in presence of medium is dielectric constant in presence of into capacitance in presence of air. Capacity of a capacitor in presence of medium is dielectric constant K into in presence of air. So capacity in presence of air is C, capacity in presence of medium by constant K. लेकिन आपको बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब ऑयल था तो उसका कैपेसिटी C था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 2 है, और हमने अगर ऑयल निकाल लिया तो क्या होगा, हाफ कैपेसिटी C/2 हो जाएगा, खत्म. ऑप्शन नंबर डी. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी टाइप. सो one question that I have left, we'll do it now. Question number 19. Two concentric spheres kept in air, okay,
having radii r, capital R and small r, they have similar charge and equal surface charge density sigma. The electric potential at their common center is, हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, मान लो दिस इज 1, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, बड़ा दिखा देता हूं। इसका रेडियस कैपिटल आर है, then we have another sphere of radius small r, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर जो है वो सेम है। So you have something like this, small r, capital R. ओके दोनों पे चार्ज डेंसिटी, इस पे भी सिग्मा है, इस पे भी सिग्मा है, राइट? सो बोथ हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड सिग्मा. Electric potential at their common center is. You should know basic formula, general formula for potential in general. Potential is 1 upon 4 pi epsilon 0 charge by distance r. ओके राइट, तो अंदर का जो स्पेयर है इसको मैं नंबर 1 बोलता हूँ, बाहर का नंबर 2 बोलता हूँ. तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट that is inner sphere is 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r. ओके राइट, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिखना है तो आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हो. If you want to write down in terms of density, you can write down in terms of density. So, but as you know, sigma is charge upon area. Okay, so this is equal to sigma into 4 pi r square. Therefore, V1 will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. Okay, you will have Q as sigma 4 pi r square upon capital R. 4 pi r गया, तो V1 equal to sigma r upon epsilon 0. This is what you have. Similarly, V2 is 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r. Okay, वापस से वही स्टोरी, but sigma is q by 4 pi small r square, मतलब q is sigma into 4 pi small r square. मतलब ये जब आप q के सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको V2 मिल जाएगा sigma small r by epsilon 0. Okay, then center of the system पे total potential will be addition of the two. Just a minute. तो आप जब आपको कॉमन सेंटर पे बोला है ना, तो therefore potential at common center will be, therefore total potential at the common center V is V1 plus V2. Therefore you have V is equal to V1, that is sigma r by epsilon 0 plus sigma small r by epsilon 0, that is equal to sigma by epsilon 0 common r plus r. ऑप्शन नंबर ए हो गया क्वेश्चन आपका खत्म. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ बेसिक क्वेश्चंस. ओके, so that's it for today. My target was to complete around 10 questions and I am already done with it.
तो सीईटी लेवल के जो क्वेश्चंस हैं दोज आर वेरी इजी. सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे.